हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स। मैं कल्पेश आज आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ हेल्पफुल टू अस फॉर आवर एग्जामिनेशंस। तो आने वाले एग्जामिनेशन में थर्मोडायनेमिक्स से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी क्वेश्चंस के टाइप्स को आज हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है और इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं आज के थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। You all know thermodynamics is a relation between heat and other form of energy. Thermodynamics deals with relation between heat and energy, heat and temperature. So the answer of the question is study of relation between heat and other forms of energy. केमिकल एनर्जी तो ये थर्मोडायनेमिक्स में आता नहीं है, ये तो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल फिजिक्स का पार्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स इज अ रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाउ मैनी ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड व्हाट आर इज this is the question, that is the following option which is a branch of thermodynamics. Equilibrium is a branch of thermodynamics, that is true. Classical thermodynamics, that is also true, and chemical thermodynamics, these three all are the branch of thermodynamics. So the correct answer is all of the mentioned, D, क्योंकि ये सभी जो तीनों पार्ट हैं ये थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट होते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स के कितने लॉ होते हैं ये पहले मैं आपको बता दूं। थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ हैं और थर्मोडायनेमिक्स ऐसा लॉ है विच इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। द फर्स्ट लॉ इज जीरोथ लॉ एंड द सेकेंड लॉ इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द थर्ड लॉ इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. This is starts from zero. Zeroth law is found in 1931. So the Faraday's law of thermodynamics, this is not a thermodynamics law. These three are not a thermodynamics law, and zeroth law is the thermodynamics law. So the correct answer is A, zeroth law. And the 2 more law of thermodynamics, that is first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. And zeroth law is formulated by R.H. Fowler. zeroth law को किसने फॉर्मुलेट किया था? R.H. Fowler ने। कब किया था? 1931 में। R.H. Fowler is the founder of the zeroth law of thermodynamics. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, हीट डज नॉट spontaneously flow from a colder body to a hotter one. Of the following thermodynamics law state this. The question is heat does not spontaneously flow from a colder body to hotter body. तो ये किस थर्मोडायनेमिक लॉ में बताया गया है कि हीट जो है वो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में नहीं ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जीरोथ लॉ तो ये नहीं बताता है एंड फर्स्ट लॉ भी नहीं बताता है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस स्टेट दैट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट हीट डज नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर वन. एंड जीरोथ लॉ स्टेट दैट इफ टू सिस्टम दैट इज ए एंड बी देन they are in thermal equilibrium. First law states that two system A and B they are equilibrium in each other. First law states that, and second law states that heat does not spontaneously flow from a colder body to hotter one. And the next question is which of the following is an application of thermodynamics. The application of thermodynamics, more application of thermodynamics, and this option refrigerator, gas compressor, power plants are all of the mentioned. These three are also a application of thermodynamics.
and Carnot engine is a application of thermodynamics, and heat engine is a application of thermodynamics, and these three are also a application of thermodynamics. So the correct answer is D, all of the mentioned. And the next question, that is, which of the following is a type of thermodynamics? थर्मोडाइनमिक्स के टाइप इनमें से कौन कौन से हैं? तो ओपन सिस्टम इज आल्सो अ थर्मोडाइनमिक टाइप, क्लोज सिस्टम एंड थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम इज दैट इज कि आप जैसे भी कोई लिक्विड या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ओपनली रख देते हैं तो उसमें से जो कुछ मास है वो भी जो है वो आउट ऑफ द कंटेनर जाता है. तो आप देखेंगे कि इसमें जो ओपन में होता है उसमें से आपके मास भी डिक्रीज होता है. हीट तो ट्रांसफ़र होता ही है, साथ ही साथ आपका मास भी ट्रांसफ़र होता है. और क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें ओनली हीट कैन बी ट्रांसफर्ड, जिसमें मास कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. बिकॉज जब आप उसको क्लोज सिस्टम रखेंगे तो मास हीट तो कंडक्शन के कारण और कन्वेक्शन के कारण चला जाएगा. कंडक्शन और कन्वेक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. और जो मास है वो नहीं जा पाएगा क्योंकि आपने उसको क्लोज कर दिया है. तो जो भी मास ऊपर जाएगा फिर वो उसी के अंदर रह जाएगा. तो क्लोज सिस्टम में ये होता है. और थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें ना तो आउटर टेम्परेचर गोज टू इंटरनल टेम्परेचर एंड आल्सो इंटरनल टेम्परेचर डज नॉट गो टू आउटर साइड. तो थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम हमें क्या बताता है कि वो पूरी तरीके से थर्मस, जैसे आप थर्मस फ्लास्क वाली बॉटल देखते होंगे, आप उसमें गर्म चीज़ें रख देते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक गर्म रहती है क्योंकि वो थर्मली आइसोलेटेड होता है. जो क्लोज सिस्टम होता है आप उसमें देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो जो है, जैसे आप चाय रखते हैं, गर्म चाय या गर्म पानी रखते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है. और ओपन सिस्टम में जैसे आप एक कप में खुला चाय रख दिए तो आप देखेंगे उसमें से कुछ मिलीग्राम्स जो है वो मास कम हो गया होता है कुछ टाइम बाद. तो ये होता है. तो थर्मोडाइनमिक टाइप्स के ये तीनों सिस्टम होते हैं. तीनों सिस्टम इज अ टाइप ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स विदाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी? कि इनमें से कौन सा है जो बिना इंटरनल एनर्जी चेंज किए अकर होता है, मतलब कि होता है. तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इन सब में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, साइक्लिक प्रोसेस में जो है इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंथैल्पी? तो आप यहाँ से देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो होता नहीं है. आप यहाँ से ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. किस तरीके से? थर्ड और फोर्थ लॉ तो थर्मोडायनेमिक्स में है ही नहीं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के तीन ही लॉ हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. तो यहाँ पे आप दो तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, सी एंड डी. और सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो किस टाइप का होता है. और तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंथैल्पी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द हीट ट्रांसफर इन टू वेज. वो कौन कौन से? फर्स्ट वे दैट इज इंक्रीज टू इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड दैट इज टू डू एक्सटर्नल वर्क. जो दो वेज कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होती है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड इज टू डू एक्सटर्नल वर्क. ये होती है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इसका फॉर्मूला भी होता है डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज होती है वो, और इंटरनल वर्क जो होता है डी डब्ल्यू. क्या हो जाता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और सेकेंड लॉ में हमने पढ़ाई था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? हीट डज नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू
हॉटर वन। तो यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल की वैल्यू क्या होती है। आपने एक एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पढ़ा होगा, वो कितना होता है 0 केल्विन। तो वही जो है एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल पे भी वही होता है 0 केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर 0 केल्विन हो जाएगा। जब आप इसको डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो ये -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन एंड -273 डिग्री सेल्सियस इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द कार्नोट थ्योरम। इनमें से कौन सा कार्नोट थ्योरम को फॉलो करता है। तो कार्नोट थ्योरम, कार्नोट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरम दी थी, जो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इंजन की एफिशिएंसी उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को डिफ़ाइन करने के लिए कार्नोट ने थ्योरम दिया था। तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें अब ये पढ़ना है कि इसमें से अब क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सा जो है कार्नोट थ्योरम को डिफ़ाइन करता है, फॉलो करता है। तो हीट इंजन जो है, वो भी भाप इंजन जो आपने जेम्स वाट ने जिसको डिस्कवर किया था, वो भी जो है कार्नोट थ्योरम को फॉलो करता है। गैस टरबाइन इंजन भी कार्नोट थ्योरम को फॉलो करता है और गैस कंप्रेसर भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द मेंशन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। 10th का अब 10 तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। If a piston cylinder with a cross sectional size of 0.01 meter square is resting on the stops, what should the water pressure be to lift the piston with an outside pressure of 100 किलो पास्कल। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, एरिया ए दिया गया है और हमारे पास क्या है, प्रेशर ऑफ आउटसाइड, जो आउटसाइड का प्रेशर है वो हमें दिया गया है। P इज इक्वल टू कितना है, 100 किलो पास्कल। तो जब हम इसको डिफाइन करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले तो हमें प्रेशर ऑफ वाटर को डिफाइन करना पड़ेगा। प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ आउटसाइड प्लस mg अपॉन एरिया। प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आउटसाइड प्लस mg वेट अपॉन एरिया। तो इसमें प्रेशर ऑफ आउटसाइड हमारे पास है, m हमारे पास है 100 किलो, क्योंकि यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, और हमारे पास एरिया भी हमें दिया गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया गया है। तो हम वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो ये 100 किलो पास्कल में दिया गया है, इसको हम जब चेंज करेंगे तो ग्राम में करेंगे, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 100,000, मतलब कि 1 लाख प्लस क्या हो जाएगा, मास 100 इंटू ग्रेविटी जी 9.8 एंड हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जाके क्या वैल्यू मिलेगी, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। हमारी वैल्यू क्या आएगी, 198 किलो पास्कल। तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 198 किलो पास्कल इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा फार्मूला लगा, प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आउटसाइड प्लस mg अपॉन a। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। At 100 degree Celsius, a seal rigid vessels with a volume of 1 meter cube and 2 kg of water has a volume of 1 meter cube. The vessel has now been warmed up. What pressure should a safety pressure valve be adjusted to achieve a maximum temperature of 200 degree Celsius? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला है, v इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब एंड m इज इक्वल टू 2 kg है। तो यहाँ से हम स्मॉल v की वैल्यू निकाल लेंगे। स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन m।
तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल v इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब पर kg हो जाएगा। इसका ये जो स्मॉल v की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद हमें 200 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है ना, तो 200 डिग्री सेल्सियस के लिए हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू 400 प्लस 0.5 माइनस, इसका जब हम ऐसे लिखते हैं P इज इक्वल टू 400 प्लस 0.5 माइनस 0.53 अपॉन 0.42 माइनस 0.53 इंटू, यहाँ पे ये इंटू में हम बगल में लिख देते हैं इंटू 500 माइनस 400। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कैलकुलेशन सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, 431.3 किलो पास्कल हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमें प्रेशर चाहिए था वो हमारा कितना आएगा, 431 किलो पास्कल। ये इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम चलेंगे, व्हेन द डाइवर इज़ 8 मीटर बिलो द सरफेस, किसी वाटर सरफेस से 8 मीटर वो अंदर की तरफ कोई डाइवर जो जाता है, द प्रेशर गेज ऑन हिज एयर टैंक्स रीड 60, जो प्रेशर गेज है उस पे वो जो प्रेशर गेज लेके गया अपने साथ वो 60 किलो पास्कल प्रेशर मीज़र करता है। द ग्रेज प्रेशर विल बी ज़ीरो एट विथ व्हाट डेप्थ, तो किस डेप्थ पे प्रेशर गेज जो है ज़ीरो मीज़र करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पहले हम देखेंगे कि 8 मीटर पे हमें दिया है, तो इसका जब हम देखेंगे ये 10 मीटर डेप्थ पे कितना जाएगा, P प्लस रो जी एच, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वो होता है 101.325। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे P की वैल्यू 101.325 प्लस रो जी एच रो 1000 इंटू जी 9.8 एंड एच हो जाएगा 8/1000। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 179.77। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, प्रेशर एट 10 मीटर डेप्थ। तो अब एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर क्या होता है, जब निकालेंगे तो हमारे पास दिया गया है 60 रीड करता है और 179 हमने निकाला है, तो 179.77 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 239.7। तो जब ये जीरो किस पे होगा, तो जब हम यही फॉर्मूला अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये जीरो किस पे आ जाएगा, 239.77 माइनस 101.32 इंटू 100/1000 इंटू 9.8। तो जब हम इसको कम्प्लीटली जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24.118 मीटर। मतलब कि जब वो डाइवर 4.118 मीटर पे अंदर जाएगा वाटर में, तब उसका प्रेशर गेज जो है वो ज़ीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ज़ीरो प्रेशर मीज़र करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री के लिए स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट क्या हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टीम पॉइंट नहीं होता है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14th का, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चूजन एज स्टैंडर्ड थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस। स्टैंडर्ड थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस मतलब कि जो सब्सटेंस को लिया गया है, चूज़ किया गया है, उसमें से कौन सा स्टैंडर्ड माना गया है। तो गैस को जो है थर्मोडायनेमिक्स में जब हम देखेंगे तो गैस को स्टैंडर्ड सब्सटेंस माना गया है थर्मोमीट्री के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपको फार्मूला पता होगा। सिंपली जो वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा
तो मैकेनिकल वर्क के लिए थीटा जब हम 90 रख देंगे, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1, तो W इज इक्वल टू एफ डी। तो इसका करेक्ट आंसर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ये इसका मैकेनिकल वर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ इंजन। इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कि उसकी हम दक्षता, जिसको हम कहते हैं इंजन की दक्षता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी Bp अपॉन IP। ये डायरेक्ट याद करने वाला है, इस पे बेस जब क्वेश्चन आएगा तो आपको Bp IP की वैल्यू दी रही होगी और आपको एफिशिएंसी उसकी निकाल लेनी है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन डज शाफ्ट यूजेस टू डू वर्क। मतलब जो मोटर की जो शाफ्ट है उसमें कौन सा मोशन होता है कि वो वर्क करता है। तो आप किसी भी मोटर में देखते हैं आप, वो रोटेशनल मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है तो वो जो है अपना जो पावर है वो हिट करता है, जो भी सब्सटेंस है उसको धक्का देता है, तो वहाँ पे वो वर्क करता है। तो इसमें कौन सा मोशन हो जाएगा, रोटेशनल मोशन। किसी भी मोटर की शाफ्ट जो है वो रोटेशनल मोशन करती है ताकि वो जो है वर्क को अपनी एफिशिएंसी अपनी बढ़ा पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी न्यूमेरिकल है। अ रेफ्रिजरेटर विथ 2 किलोवाट मोटर फॉर पावरिंग द कंप्रेसर गिव्स 6000 किलो जूल ऑफ कूलिंग। जो इसमें इस 30 मिनट में जो ऑपरेशन है वो इस किचन को टोटली इंसुलेटेड कर देता है। तो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द किचन इफ कंसीडर्ड कॉइल बिहाइंड रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट्स 8000 किलो जूल ऑफ हीट टू द किचन ओवर द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो किचन को तो टोटली इंसुलेटेड कर दे रहा है, तो थीटा किचन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किचन का थीटा जो हीट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, वो टोटली इंसुलेटेड है। और जो W इलेक्ट्रिकल वाला जो वर्क है वो हमारे पास क्या होगा, -P इंटू डेल टाउ होता है। तो यहाँ पे P हमारे पास कितना है, 2 किलोवाट है। P इज इक्वल टू 2 किलोवाट एंड हमारे पास जो डेल टाउ है वहाँ पे 30 मिनट में बोला गया है ना, तो इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे जब मिनट को, तो इंटू 60 कर देंगे। मतलब कि ये आ गया 3600 किलोवाट। ये हमारे पास आ गया W इलेक्ट्रिकल, जो वर्क हुआ इलेक्ट्रिकल वर्क उसमें जो हुआ वो हो गया 3600 किलोवाट। अब यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो थीटा किचन का है माइनस जो वर्क किया गया इलेक्ट्रिकल वर्क, इसमें तो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है ना, तो जो वर्क किया गया और जो किचन की एनर्जी है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द किचन आ जाएगी कि उसमें कितनी एनर्जी है अभी। तो उसके लिए क्या, वो तो हमें मिला था थीटा किचन इज इक्वल टू 0 था और हमारे पास W इज इक्वल टू क्या आ गया, -3600। माइनस साइन यहाँ पे क्या बताता है कि काम हमने किया नहीं है, काम हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इसका जब हम इसको माइनस कर देंगे 0 -3600, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, 36 किलो जूल। दिस इज़ द इंटरनल एनर्जी। करेक्ट आंसर ए हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है। एट 15 डिग्री सेल्सियस स्टील पॉट विथ 5 mm थिक बॉटम। एक स्टील का जो है बॉटम जिसका 5 mm थिक है वो लिक्विड वाटर से भरा गया है जिसकी कंडक्टिविटी 50 W/m है। द पॉट हैज़ अ 10 सेंटीमीटर रेडियस, उसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम mm को जब चेंज करेंगे तो 5/1000 करेंगे और जब 10 सेंटीमीटर को करेंगे तो 10/100 करेंगे, मतलब कि 1/10 0.1 आ गया इसका रेडियस 0.1 मीटर और ये आ गया 0.005 मीटर इसका जो है थिकनेस। तो यहाँ पे हमें
जो आउटर पार्ट जो अज्यूम कर रहा है जितना टेम्परेचर, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसका जब सॉल्यूशन हम देखेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है इसका, थीटा इज इक्वल टू होता है के ए डेल टी अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर, हमें थीटा पता है, हमारे पास डेल टी को हमें मीजर करना है टेम्परेचर, के ए और डेल एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो पहले तो हम डेल टी को इधर कर लेते हैं। तो डेल टी इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू थीटा इंटू डेल एक्स अपॉन के ए। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 250 वाट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 वाट इंटू ए जो है हमारे पास आ जाएगा 0.005 अपॉन 50 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। एरिया जब हम यहाँ पे करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो एरिया जो आ जाएगा पाई बाई 4, 1 मिनट इसको हम क्लियर लिख देते हैं, एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया। और इसका जब इसको सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ पे जो डेल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू 0.796। वहाँ से जब हम 250 इंटू 0.005 अपॉन 50 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल टी ये मिला। अब हमें टोटल टेम्परेचर निकालना है। तो टोटल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास पहले से टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस ये, प्लस जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो। तो T इज इक्वल टू 15 प्लस 0.796, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट इज 0.8। तो T इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारे पास 15.8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। तो 20 का करेक्ट आंसर 15.8 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट फ्लो इनटू अ सिस्टम इज एंड हीट फ्लो आउट ऑफ सिस्टम। मतलब कि जब इनटू मतलब सिस्टम में बाहर से अंदर की तरफ हीट आती है तो उससे क्या, वो किस में आती है, और जब बाहर से अंदर की तरफ जाती है, जब अंदर से बाहर की तरफ जाती है तो किस में आती है। तो यहाँ पे जब वो बाहर से अंदर आएगी तब तो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हमें हीट मिल रही है, तो वहाँ पे जो है पॉजिटिव लेंगे। जब वो बाहर जा रही है तो इसकी हीट जो है डिक्रीज़ हो रही है ना, तो यहाँ पे उसे हम निगेटिव में लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीट फ्लो इनटू अ सिस्टम इज़ पॉजिटिव एंड हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम इज़ निगेटिव। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव, करेक्ट आंसर डी यहाँ पे है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, निगेटिव निगेटिव हो नहीं सकता, तो बचा सी और डी। लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आएगी हीट तो वहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, और अंदर से बाहर जाएगी तो वहाँ पे हम निगेटिव लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल वाज द फर्स्ट टू प्रूव दैट हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जूल जो है वो फर्स्ट प्रूफ था कि हीट जो है वो टाइप ऑफ एनर्जी है। तो यह स्टेटमेंट एकदम कम्प्लीटली ट्रू है, 100% ट्रू है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द m इंटू जी इंटू जेड गिव्स। तो mgz हमें क्या बताता है, ये पूछ रहा है। माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हमारे पास मोशन होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कट गया यहीं से और पोटेंशियल एनर्जी बचा। तो पोटेंशियल एनर्जी माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे 23 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस और रह गए हैं। तो
आप सभी को आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और जब जो भी आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तभी हमको पता चलेगा कि आपको डाउट कहाँ है, हमें और क्या करना चाहिए, और हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें। तो अब 2 क्वेश्चन जो बचे हैं हम चलते हैं उनकी तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर। जो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है वो किस टेम्परेचर किस टेम्परेचर के लिए है? तो वो किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है, आदर्श गैस टेम्परेचर के लिए इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है। करेक्ट आंसर इसका है डी 24 का। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज मास ट्रांसफ़र अकर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। किस सिस्टम में मास भी जो है वो सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है? जैसे कि आपने एक बीकर में कुछ लिक्विड लिया तो इसमें से मास भी किस सिस्टम में चला जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें तो टेम्परेचर भी नहीं जाता बाहर, तो मास कहाँ से जाएगा? क्लोज सिस्टम, इसमें टेम्परेचर बाहर जा सकता है लेकिन मास बाहर नहीं जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन सिस्टम। हमने आपको बताया था कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं। तो ओपन सिस्टम में मास भी जो है वो आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री जा सकता है, अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। तो यहाँ पे हमारे आज 25 क्वेश्चंस, हमने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स से बनेंगे। हम आपके लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आते रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे और आपके प्रिपरेशन में हम साथ देते रहेंगे। सो अच्छे से रहिए और अपनी प्रिपरेशन को खूब अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।